Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Good, Alhamdulillah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما آمين. Today we will do the story of Prophet Musa alayhi salam. But last time we have covered the story when Musa alayhi salam was born or he was just a baby. And this time we will do the story when he was grown or became an adult. So the story is based on Surah Al-Qasas. What Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran, वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा, कि जब वो बड़े हुए, ठीक है, कि जब वो बड़े हो गए, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, ठीक है, उनमें फुल स्ट्रेंथ आ गई एंड ही वाज mentally mature, then Allah subhanahu wa ta'ala says that ataynahu, that we have given him what? Hukman wa ilma, we have given him hukm and ilm. And hukm, what is hukm? There are many things that comes in hukm. Hukm is that we bestow, hukm is like, for prophets, it is like prophethood and wisdom and a power to make decisions. But for people like who are not prophet, it covers like wisdom and decision power and something like that. कि अक्ल, समझ, बूझ, फहम, हिकमत, विजडम, कि आप फैसले कैसे करते हैं, ये चीजें आ जाती हुक्म में. लेकिन जब कोई प्रॉफिट होता है तो ये चीजें भी आती हैं उसमें, और साथ साथ कि उसकी प्रॉफिटहुड भी. ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या दिया उनको? हुक्म और इल्म. इल्म यानी कि नॉलेज भी दिया. दिस इज द स्टेज इन अल कुरान. आई मीन व्हेन अल्लाह सुब्हानहू ताला इज मेंशनिंग दैट ही हैज गिवन मूसा अलैहि सलाम विद हुक्म एंड इल्म. बट वेयर वी आर इन आवर स्टोरी, Prophet Musa alayhi salam was not yet a prophet. Okay, he was a simple man, but he now grown. He was a grown boy, or you can say that he was like, जैसे कहते हैं ना, young है, जवान है, उस तरह. And he was mature. Then what happened? I think you remember from the previous part that we were in the stage when, you know, कि मूसा अलैहि सलाम जो है वो अपनी मम्मा के पास दूध पीने के लिए वापस भेजे जाते थे. ठीक है, तो फिर वो दोबारा महल में चले जाते थे, दोबारा वो पैलेस में चले जाते थे दूध पीने के बाद, टाइम गुजारने के बाद अपनी मम्मा के साथ. एंड देन आफ्टर दैट ही कंटिन्यूड लिविंग इन फिरौन्स पैलेस. तो वो फिरौन के घर में रहते थे, उन्हीं लोगों की तरह उनकी परवरिश हो रही थी. He was strong and he was trained. And then what happened? He entered the city, मतलब जिधर वो रह रहे थे. He was in Pharaoh palace, but then वो पैलेस छोड़ के सिटी में आए. He entered the city at a time of inattention by its people. यानी कि उस जो सिटी के लोग थे ना, वो मे बी सो रहे हों, गफलत में आता है कि वर्ड, वो मे बी सो रहे हों, या ऐसा कोई टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है, लेट नाइट का हो सकता है, जब वो सो रहे हों. तो he found what? Musa alayhi salam found two men fighting with each other. Okay, the two were fighting a lot and one was from his faction. एक हज़रत मूसा अलैहि सलाम की उसमें से था, ठीक है, फैमिली में से समझ लें कि बनी इसराइल में से था, और जाहिर है वो वीक था. And the second was from among his enemy. The second was from a strong family, like from the family of a Pharaoh. So one was the weak and one was the strong, and the strong was the enemy. And they both were fighting, and the weaker one called Musa alayhi salam for help. He said, Musa, help. Okay,
he called out loud that Musa, help me. He saw Musa alayhi salam around, and he knew that Musa alayhi salam is a strong man, and Musa alayhi salam was a helping person as well. He used to help others a lot. So उसने फौरन से मूसा alayhi salam को मदद के लिए बुलाया. He said, Musa, help. So Musa alayhi salam came for help the weak person and घूसा मारा मूसा ने. वो आता है ना जैसे मुट्ठी बंद करके ना, ठीक है, आप लोगों को पता है ना घूसे का. तो मूसा अलैहि सलाम ने उसको ना घूसा मारा. He punched him, the stronger one, and he punched the stronger one, okay, to save the weaker one. But you know, पता है क्या हुआ? When he struck him, then he unintentionally killed him, you know. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो किसी कमजोर को बचाने के लिए एक ताकतवर को घूसा मारा था, बट क्या हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो तो मर ही गया आगे से, ठीक है, वो एक घूसे से मर गया. एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम स्ट्रांग बहुत थे, और दूसरा ये था कि बस अल्लाह ताला का फैसला था और वो किसी ऐसी जगह उसको लगा कि वो मर गया. ओ, तो अब तो बिल्कुल सिचुएशन अजीब सी हो गई. मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हेल्प करने की कोशिश की थी और आगे से दूसरा बंदा मर गया. ओ, फिर पता है क्या हुआ? Then Musa alayhi salam said, he immediately felt sorry and he said, he said, هذا من عمل الشैतान. ये तो शैतान का जो है ना काम बन गया. अब ये शैतान का काम है, उसने ना ये गलत काम करवा दिया है मुझसे. Okay, so he has done wrong. इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन. बेशक जो शैतान है ना, वो क्या है, बहुत बड़ा एनिमी है. He is a clear enemy and he is a misleading enemy. So he misled me and ये तो गड़बड़ हो गई है. So then Musa alayhi salam was very upset and he immediately felt sorry and he did sorry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. He felt sorry and he repented on what he did and he said to his Rabb that, my Lord, indeed I have wronged myself, so forgive me. एंड फिर क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दें कि मैंने खुद ही गलत कर दिया. उन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए, मुझे फलाने ने हेल्प के लिए बुलाया था इसलिए हो गया. सो ही फेल्ट सॉरी एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला न्यू दैट मूसा अलैहि सलाम इज सेइंग सॉरी विद अ ट्रू हार्ट. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिव हिम बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द मोस्ट फॉरगिविंग, द मोस्ट मर्सीफुल. तो कौन से वर्ड्स आते हैं? क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम. ये जो ऊपर ब्लू वाला है ना, ये वो है कि जो यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा ना, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, कि ओ माय लॉर्ड आई हैव डन रॉन्ग टू माई सेल्फ. ठीक है, सो फॉरगिव मी, अल्लाह ताला मैंने तो अपने साथ गलत कर दिया है, तो अब आप प्लीज मुझे माफ कर दें. तो अल्लाह ताला आगे ये जो आता है ना, फ़ग़फ़र लह, सो वी हैव फॉरगिवन हिम, हमने उसको माफ कर दिया. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि वो ट्रू हार्ट से सॉरी करे. तो आपने देखा ये क्या हो गया था, किल हो गया था, कत्ल हो गया था. लेकिन कत्ल भी अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगे तो. लेकिन एक बात इधर नोट करने की है, वी हैव टू नोट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट द कत्ल दैट वाज डन फ्रॉम मूसा अलैहि सलाम वाज नॉट इंटेंशनल. okay, he has not done an intentional qatl or intentional killing, it was an unintentional act. okay, तो ये तो उनका बिल्कुल इरादा नहीं था. एक तो कत्ल करने का तो इरादा ही नहीं था, दूसरा कत्ल हो खुद ही मर गया, तो इसको कहते हैं कत्ल खता, कि मिस्टेक से कत्ल हो जाना. सो वो आप कोई और काम करने जा रहे हो लेकिन हो कुछ और जाए, तो ये वो वाली चीज है. ठीक है, सो ये वो नहीं है कि आपने खुद किसी को मारने के लिए किलिंग की है, और दूसरा वो था भी दुश्मन का आदमी. सो ही जस्ट उन्होंने ट्राई किया सेव करने के लिए, लेकिन गलती से कत्ल ही हो गया. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला न्यू ऑल द सिचुएशन एंड ही न्यू हिज हार्ट एंड ही न्यू दैट ही इज सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम मी. सो फ़ग़फ़र लह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज फॉरगिवन हिम because Allah Ta'ala is Al-Ghafur Ar-Rahim. He is the most forgiving, the most merciful. And I want to tell one important thing over here.
And that is not from this story, but that is from the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Rabia reported that in my presence, a beast was brought to Ali bin Abu Talib. You know, Ali bin Abu Talib, he was a companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And इसके अलावा वो जाहिर है उनके चचा के बेटे भी थे और उनके दामाद भी थे, यानी कि उनकी जो बेटी थी उनके हस्बैंड भी थे, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. A beast was brought for riding. कि एक जो है एनिमल लाया गया जिसके ऊपर वो सवार होने लगे थे. And when he put his foot in the stirrup, यानी कि जब उन्होंने उसका पुट रखा, वो रकाब होती है जिस जगह पे एनिमल पे बैठने के लिए एक हुक सी बनी होती है ना. When he put his foot in the stirrup, he said, Bismillah. So आप लोगों ने भी ध्यान देना है कि अब जब गाड़ी पे बैठेंगे तो हमने क्या करना है. He said first, Bismillah. When he had settled himself on its back, जब आप सीट पे ठीक तरह से बैठ जाए, then what he recited, Alhamdulillah. What he recited, Alhamdulillah. Then he said, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Or it comes, Alhamdulillahilladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. And I'm sure you all must know this dua because we all read this dua when we travel. And he said for 3 times, Alhamdulillah. And then he said for 3 times, Allahu Akbar. And then he said, Subhanak inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. So now you know the reason why I have mentioned it over here. कि फिर उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, फिर उन्होंने वो सफ़र की दुआ पढ़ी, फिर उन्होंने 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर उन्होंने 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहा. And then he said these words कि ओ अल्लाह you are pure, इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, कि मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, I have wronged to myself, so forgive me. So you know these are the same words as it were before in the previous slide, like Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो यही कहा था ना, oh my Rabb, I have wronged myself, so forgive me. So इधर भी आ रहा है inni zalamtu nafsi faghfir li. ठीक है. तो then what happened? Then Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु smiled. Okay, and it was asked from Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, why have you smiled, O Amirul Mu'mineen? Then he replied that I smiled because I saw Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doing that. One day he was doing the same and he was all performing the same actions, and then he said this dua like inni zalamtu nafsi faghfir li, and he smiled. And I asked, yani Ali Rizal Ta'ala asked same question from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why are you smiling? Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, your Rabb, glorious is he, is pleased when his slave seeks his forgiveness. तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जब उनका जो भी बंदा होता है ना, जब उनसे माफ़ी मांगता है, जब इस्तग़फ़ार करता है सही वाला सीरियसली, तो फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं. तो चूंकि अल्लाह ताला खुश होते हैं, तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने स्माइल किया कि मेरा रब खुश हो रहा है, माय रब इज प्लीज्ड नाउ, सो मैं भी स्माइल करता हूँ. तो वो स्माइल किया उन्होंने. देखो उनका रब के साथ एक लिंक था ना, तो जब उन्होंने देखा कि अब मेरा रब खुश हो रहा है, तो वो उन्होंने फिर उसका जेस्चर के तौर पे स्माइल किया. तो फिर हजरत अली ने भी यही लर्न किया कि जब वो ये वर्ड्स कहते थे ना, इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, फिर वो भी स्माइल करते थे इस जगह पे. तो अब मैंने और आपने भी यही करना है कि जब हम इस तरह के वर्ड्स बोलेंगे ना, और रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, तो फिर हम क्या करेंगे, स्माइल करेंगे. ठीक है, कि हम अल्लाह से माफी मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला खुश हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जब इस तरह के वर्ड्स हम बोलेंगे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, so we will smile because we know that our Rabb is becoming happy with us at this stage. Okay, inshallah. And then आपको पता है अल्लाह ताला ने जब उनको माफ़ कर दिया और उनको फील हो गया कि अब मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया. ठीक है, वो उस वक्त प्रॉफिट तो नहीं थे कि उनको बता दिया जाता, लेकिन वही उन पे कर दी जाती कि मूसा हमने तुम्हें माफ़ किया. नहीं, उनके दिल में एक फीलिंग डाल दी अल्लाह ने कि ही न्यू दैट कि अब मुझे माफ़ कर दिया गया है. ही वाज लाइक सेटिस्फाइड. देन ही सेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला,
क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैया फलन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन, कि ओ माय लॉर्ड फॉर द फेवर दैट यू बेस्टोड अपॉन मी, कि आपने मेरे ऊपर इतनी अच्छी फेवर किया कि मुझे माफ कर दिया, आई विल नेवर बी एन असिस्टेंट टू द क्रिमिनल्स, कि अब मैं गलत लोगों का ना बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। अब मुझे उस किसी ने इस तरह के उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की ना, तो मैं नहीं उसमें इन्वॉल्व हूंगा, ठीक है। सो देन ही इंटेंडेड नॉट टू रिपीट हिज मिस्टेक, ओके। And next day, when Musa alayhi salam came in the city, fearful and anticipating. अब वो fearful इसलिए थे, fearful पता है क्यों थे वो? क्योंकि पिछले दिन कत्ल जो हो गया था, देन वो डर रहे थे पता नहीं क्या होता है, तो वो देखते भालते आ रहे थे, and he was coming, and then what happened कि he saw that man again. वो जो दूसरा बंदा था ना, वो जो वीक वाला था, वो फिर किसी से लड़ाई कर रहा, ठीक है, and he is again fighting with someone, and that man again saw Musa alayhi salam and called for help and said, Musa, help. He again called for help. Then Musa alayhi salam realized that, oh, ये बंदा तो है ही ऐसा, ये तो लड़ाइयां करता रहता है, okay, so इसका तो काम ही ऐसा है. So he said, you are a clear deviator. Musa alayhi salam said to that man that now I will not repeat the same procedure. So you are a clear deviator. मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना उन्होंने कोशिश की कि इनमें अब मैं छुड़वाऊं, दूसरे को मारूंगा तो नहीं, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा छुड़वा दूं, एक दूसरे से ये ना फाइट करें। तो उन्होंने उन दोनों को डिस्टेंस करने की कोशिश की ना, तो पता है क्या हुआ, ये जो वीक वाला था, जो पिछले दिन भी जिसने हेल्प के लिए बुलाया था, एंड नाउ ही इज calling for help again. So he misunderstood. He thought that now Musa alayhi salam is not going to help me, and now he is going to put punch over me. अब वो मुझे घुसा मारने लगे, तो अब he misunderstood and he thought कि अब तो मेरी खैर नहीं है. So he immediately disclosed the matter. ओके वो डर गया और उसने फिर क्या किया, मैटर ही डिस्क्लोज कर दिया कि ओ मूसा, पिछले दिन तुमने दूसरे बंदे को कत्ल किया और आज तुम मुझे कत्ल कर रहे हो। तो इस बात से पता क्या हुआ, इस तरह फिर इर्द गिर्द लोगों को पता चल गया ना कि क्या हो गया भाई, कल तो मूसा अलैहिस्सलाम से किलिंग हो गई थी। ओ फिर इस तरह क्या हुआ, दैट मैन डिस्क्लोज द मैटर, एंड फिर सबको पता चल गया, बहुत ज्यादा लोगों को, कि मूसा अलैहिस्सलाम से पिछले दिन ये हो गया था, मिस्टेक हो गई थी इतनी बड़ी। फिर क्या हुआ आफ्टर दैट, अब तो मूसा अलैहिस्सलाम भी डर रहे, और एक दूर से एक शख्स ना भागता हुआ आया। अ मैन केम फ्रॉम द फार्देस्ट एंड ऑफ द सिटी रनिंग, वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, के दूर से, एक दूर से मुराद ये है कि देखो दो पार्ट थे, एक तो सिटी पार्ट और एक तो वो जो फिरौन का पैलेस वाला पार्ट था, ठीक है। तो वो फिरौन के उस जगह से जहाँ के वो पैलेस वाला पार्ट था, वो वहां से आया, क्योंकि वहां पे कोई मीटिंग हो रही थी फिरौन की और उसके बड़े बड़े लोगों की, जो उसके थे ना, उनकी आपस में मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग थी अगेंस्ट मूसा अलैहिस्सलाम, बिकॉज अब जो बंदा मरा था ना, वो फिरौन की फैमिली से मरा था, फैमिली से मुराद है कि उस तरह के लोगों से। सो देन व्हाट, the meeting was ongoing and they were planning how to kill Musa alayhi salam. So call a person, एक पर्सन था जो उस मीटिंग में था, लेकिन वो मूसा से सिंसियर था, मूसा अलैहि सलाम के साथ मुखलिस था, सिंसियर था। So he wanted to help Musa alayhi salam and he said, या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून, कि ए मूसा, जो बड़े बड़े सरदार हैं ना, लीडर्स हैं फिरौन के साथ, वो मशवरा करें, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बिका लियक़तुलूक, के तुम्हारे बारे में कर रहे हैं, लियक़तुलूक, ताकि वो तुम्हें कत्ल कर दें, ठीक है। सो दैट दे किल यू, फखरुज, सो गेट आउट ऑफ हियर, इन्नी लका मिनन नासिहीन, सो गेट आउट ऑफ हियर, बेशक मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूँ, आई एम योर वेल विशर, आई एम sincere with you, I am telling you a good advice that leave this city immediately, because अब आपकी खैर नहीं, अब आप इधर आओगे तो कत्ल ही हो जाओगे। सो मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले भी डरे हुए थे, ठीक है। देन मूसा अलैहिस्सलाम immediately listened this and he then left the city fearful and anticipating, वो डरते हुए और घबराते हुए, और कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले, और वो भाग निकले वहां से, सिटी से। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनको लिए एक वो मस्ट कर दिया कि उनको वहां से जाना पड़ा।
So he left that city. And when he left the city, he called Allah subhanahu wa ta'ala with these words that my Lord, save me from the wrongdoing people. कौन से wrongdoing people? फिरौन वाले people थे ना, फिरौन और उसकी family के लोग. So he said, save me from the wrongdoing people. ठीक है, कि जो दूसरों को अप्रेस करते हैं, मुझे उनसे बचा ले. क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब, save me from those who do zulm, who oppress others. Okay, so then next it comes, and फिर उन्होंने इरादा किया कि अब किधर जाए वो. So he उन्होंने अपना मुंह किया मदियन की तरफ. एक जगह है मदियन की तरफ, एक पिछली स्टोरी भी मैंने जिक्र किया था मदियन का, शुएब अलैहिस्सलाम की स्टोरी में. So उन्होंने अपना मुंह किया मदियन की तरफ, ठीक है. एंड व्हेन ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टुवर्ड मदियन, जब उन्होंने मदियन की तरफ जाने का इरादा किया और चल पड़े वहां मदियन की तरफ, देन ही सेड, perhaps my Lord will guide me to the sound way or to the right way or right path. कि इंशाल्लाह, अब उनको पता तो नहीं था कि वो किधर जाने वाले हैं, उनको रास्ते तो नहीं पता थे, और ना उनको पता था उन्होंने किधर जाना है, उनका क्या फ्यूचर होना है. So he said, he called Allah subhanahu wa ta'ala with these words, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, जब मदयन की तरफ मुंह किया तो उन्होंने कहा, قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل, कि I hope that my Rabb will guide me to the sawa as-sabil, the right path or the correct path or the correct way. कि एक वैसे मदियन की तरफ रास्ता कौन सा जाता है उसकी तरफ भी, और दूसरा कि आगे मेरे साथ होना क्या है, मैंने लाइफ में करना क्या है, अब अल्लाह ताला उसमें भी मुझे बेहतरीन रहनुमाई करेंगे. ठीक है. So he called Allah subhanahu wa ta'ala with these words. Have you noticed he everything that happens he talks to Allah subhanahu wa ta'ala, he calls Allah subhanahu wa ta'ala, okay, with different words. So then उनको बस मजबूरी से ही उनको वो लेफ्ट करना पड़ा. ठीक है. And then he moved towards Madian, and we will know in the next part that what happens when he moved towards Madian. Okay, so today we will cover until here, inshallah. So now I want to know that what lessons have you learned from this? That you should ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you nicely. What is your name? Umama. Yes, we should ask forgiveness, and we should say to Allah subhanahu wa ta'ala. Very good. Yeah, Arham and Ashad, now you can participate. If we need anything, we need to ask Allah Ta'ala. Yes, we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala for everything. Very good, Arham. Yes, Fatima, you can tell. When you make a mistake, then you should say sorry to Allah like you mean it. Yes, you should say sorry to Allah and you should mean it. यानी आपको वाकई इसमें सिंसियर भी होना चाहिए, है ना? यही मतलब है ना आपका? Very good. जी. Very good. MashaAllah. Yes, Iman Fakir. I was going to say that that if you do something wrong, then you ask forgiveness. Yes, we should ask forgiveness, and ये भी है कि we should even continue asking forgiveness even if we feel that we have not done anything wrong. Okay, वैसे भी हमसे mistakes होती रहती है ना, हमें पता भी नहीं चल रहा होता. So we should even seek forgiveness even that time. But just definitely when we do something wrong, फिर तो must Allah से मांगना चाहिए forgiveness. Very good. And yes, Jaisha. I am saying when we have a problem, then sometimes we do mistakes. Yes, if you do mistakes, then or some problem happens, talk to Allah. Let us move to the next part. The lessons that I have written are the same, more or less. That one is that Allah subhanahu wa ta'ala forgives us. Allah ta'ala हमें माफ कर देते हैं. Especially if we truly feel sorry or we sincerely repent. अगर हम सच्चे दिल से सॉरी फील करेंगे और अल्लाह ताला से हमें सैड फील हो रहा होगा, लाइक हमें बुरा फील हो रहा होगा कि आई शुड नॉट डू दैट, तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे. एंड if we will ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, फिर हम सॉरी फील करेंगे, फिर हम अल्लाह ताला से सॉरी बोलेंगे भी, अस्तगफिरुल्लाह भी कहेंगे, and then we will intend not to repeat our mistake or our sin.
हम पूरी दिल से पूरे सच्चे उस नीयत से हम इरादा करेंगे that okay, now we will not repeat this mistake inshallah, so then Allah subhanahu wa ta'ala really forgives us. Okay, and don't fight with each other, है ना, लड़ना नहीं चाहिए ना, we should find some other way, some peaceful way, so we should not fight with each other. वो बंदा लड़ रहा था ना, दोनों आपस में लड़ रहे थे, and we should help others. इस स्टोरी में मूसा अलैहिस्सलाम ने हेल्प की थी ना, ठीक है, तो we should help others, and but we should be careful that we should help in a way कि ये दूसरी तरफ ना चली जाए. We should try our best कि we should only help, and respect someone's secret, और यानी कि किसी का मैटर आप डिस्क्लोज ना कर दें, बट इट इज द रूल फॉर गुड, यानी कि आपने किसी को किसी की कोई बात नहीं बतानी, लेकिन फॉर गुड पर्पस. लेकिन जैसे अब कोई लाइक क्राइम हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है, एंड देन यू विल सी, तो वो तो फिर जाहिर आप बताएंगे, लेकिन रिस्पेक्ट करना है किसी का सीक्रेट अदरवाइज. ओके, and call Allah in all circumstances. We should call Allah, we should talk to Allah subhanahu wa ta'ala in all circumstances, good or bad. Okay, now Ma'am, it's time for quiz. yes, it is time for Kahoot quiz. Are you ready? So I am going to start. So the first question is that Fir'aun was a just ruler and used to treat people equally. I mean, is it true or false? False. False. And next question is again true or false? Allah subhanahu wa ta'ala made Musa alayhi salam a prophet for Bani Israel. Is it true or false? True. The next question is why Umme Musa put, Umme Musa means mother of Musa. Why Umme Musa put an innocent baby, that is Musa alayhi salam, into the river? अब इसके ऑप्शंस ये हैं कि फिरौन ऑर्डर्ड टू किल ऑल मेल सन्स बॉयज ऑफ बनी इसराइल, ये रीजन थी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंस्ट्रक्टेड हर टू डू सो, ऐसा था, या टू सेव हर सन फ्रॉम द रीच ऑफ क्रूअल किंग फिरौन, ऐसा था, या ऑल ऑफ द अबव, कि सारे ठीक थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट ऑफ उम्मे मूसा बिकेम एम्प्टी, के उनका हार्ट एम्प्टी हो गया. विच वर्ड वॉज यूज फॉर द स्टेट ऑफ हर हार्ट? वर्ड कौन सा यूज हुआ था अरबी में उनके दिल के लिए, कि उनका दिल क्या हो गया था? रकीको या कौसिया या मलफूफा या फारिगा, क्या टर्म यूज हुई थी? Fariga. एंड रकीका इज सॉफ्ट, कि सॉफ्ट हार्ट होना किसी का, एंड कौसिया इज कि किसी का हार्ड हार्ट होना, सख्त सख्त किस्म का पत्थर की तरह का दिल होना. एंड मलफूफा मीन्स कि किसी का दिल रैप हुआ हुआ है, उसके ऊपर ना किसी बात का कोई असर ही नहीं होता, अल्लाह की बातों का असर नहीं होता, ये समझ लें. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी? Yes. Yes. So what you learned from the story of Musa alayhi salam and Firaun? क्या लेसन लर्न किया था आपने उनकी स्टोरी से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द बेस्ट प्लानर, ये लर्न किया था, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला's प्रॉमिस इज ट्रू, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो प्रॉमिस है वो ट्रू होता है, और वी शुड ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट करना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव, कि आपने सारे ही लेसन लर्न. Trust करना चाहिए. We should trust चाहिए. Allah, and Allah is the best planner. Very good. और Think. Allah's promise is true, ये लर्न किया था. हाँ जी, अल्लाह ताला के promises जो होते हैं वो true होते हैं. तो फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की मामा से true बोला था कि वो ऐसा हाँ, करेंगे. वेरी गुड. अच्छा, तो फिर आपने ये लेसन भी लर्न किया है, और ये भी लर्न किया है, और ये भी लर्न किया है. तो जब ऐसा होता है ना कि जब सारी बातें ठीक हो, तो फिर हम ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते हैं, ठीक है? Yes, all of the above. Next, third, Arham and Ashra on the third. Very good. Barakallah feek. Hafsa and Afnan on the second. Nice. And Iman and Fakia on the first. MashaAllah. Barakallah feekum. May Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in your knowledge, ilm and amal. ठीक है? इल्म होता है, knowledge अमल होता है, उस पर अमल करना.
Very good job, all of you. Barakallahu feekum, all of you who have participated in the quiz and who have participated like through voice मैसेज, यानी कि अभी जिन्होंने बोल बोल के क्विज किया और जिन्होंने चैट में लिख के किया, ठीक है, एंड जिन्होंने कहूट किया उनके लिए भी बारिकल्लाह फीकुम. ठीक, we will have a look on the homework that I have given, that Musa put Musa alayhi salam in river Nile, trusting Allah subhanahu wa ta'ala. So you people had to find out that where is the Nile river in the world. कौन से कंट्री में है या कौन से कंट्री के पास से गुजरता है. ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड किया आप लोगों ने फाइंड, और मुझे कुछ लोगों ने सेंड भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, and I have shown their homework. Ma'am, it is in Egypt. Okay, who said that? What is your name? Namra. Oh, these are those girls or those boys जिन्होंने मुझे homework send किया. ठीक है, Namra said that it is in Egypt. Aisha said that it is in Egypt. Asher said that it is in Egypt, and Arham said that it is in Egypt. MashaAllah, barakallah feek. I also received this homework from Arsalan, and I liked homework very much. You know, he has told the name of the river, and then he also told that the other facts about river Nile. He said that river Nile is the largest city in or longest city in the world. ठीक है, ये बड़ा लंबा सा river है, and इसकी length जो है वो है 6,695 kilometers, and इसकी जो depth है ना कि ये नीचे कितना जाता है 8 to 11 meters. ठीक है, depth बहुत ज्यादा नहीं है, but still it is. And countries जिनसे ये गुजरता है वो कौन कौन से हैं? इजिप्ट, एथियोपिया, सूडान एंड बुरुंडी. ओके, एंड कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट है जिसके पास ये गुजरता है अफ्रीका. ओके, एंड ये भी बताया अरसलान ने कि हाउ मच वाटर इट ट्रेवल्स, कि वाटर कितना इस पे ट्रेवल कर जाता है. तो इट इज 3.1 मिलियन लीटर्स पर. वेरी गुड अरसलान, गुड जॉब, माशाअल्लाह. This is the work of Iman and Fakia, and they have like highlighted it in the map that where this river. You see, this is the blue line. Can you see the blue line? This is the Nile River, the blue line that is going all over. Okay, and it is passing from, and you see it is written here: Nile, Blue Nile, White Nile. And these are the countries जिनके पास ये गुजरता है. Egypt, इधर से रेड सी भी है ना, नजर आ रहा है ये जो लिखा हुआ है रेड सी, और इजिप्ट से गुजरता है, सूडान से गुजरता है, साउथ सूडान, एंड आल्सो लाइक कीनिया, इसके राइट तरफ में कीनिया है, एथियोपिया है, and these countries, and on the left there are Egypt, Sudan, and माशाल्लाह बारिकल्लाह फीकुम, all of those who sent me the homeworks. और कुछ बच्चों ने मुझे पता है अभी क्लास के दौरान भी मुझे लगा कि मुझे सेंड किया जो मैं नहीं देख सकी, but I gonna say their names at least. Ali Ahmed said that Nile River is in Africa, Uganda. कि ठीक है, अफ्रीका युगंडा से गुजरता है. ठीक है, वेरी गुड. तो वो ये सब कंट्रीज के पास गुजरता है, तो आप सब कह सकते हैं. तो अली अहमद का भी होमवर्क इसका मतलब रिसीव हो गया. नमरा ने भी आंसर दे दिया. And I also received the message from Anabia. Very good, all of you. And now, alhamdulillah, our classes end. So we're gonna say the end dua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.